हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 6.1। राइट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज फर्स्ट वी हैव एन इंस्ट्रक्शन दैट पाई वी हैव टू टेक 22/7। द फर्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस? पेरीमीटर दिया हुआ हमें सर्कल का, उसकी रेडियस निकालनी है। तो वी नो दैट पेरीमीटर of a circle is equal to 2 pi r, right? And that has been given as 44 is equal to 2 pi r, right? So we will take here 44 upon 2 is equal to pi 22/7 and r. Solve it. It is 22 is equal to 22/7 r. So 22 will come over here, इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 7/22। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 22 से 22 गया तो आपकी रेडियस जो आ गई वो 7 आ गई। सो दिस इज योर रेडियस, राइट? सो वेरी सिंपल, द वैल्यू हैज बीन गिवन, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। Now, the question number 2. Now, read the question. Calculate correct to 3 significant figure the circumference of a circle with radius 7, radius 10, and radius 12. The circumference of a circle. So, first part, circumference means perimeter of a circle, right? So, circumference of circle when we have given radius 7, so we have 2 pi r, right? Circumference, so 2 multiplied by pi value 22/7 and r is given 7 centimeter, right? So 7 7 22 twice 44. So this is your 44 is the answer, right? Second, circumference of circle 2 pi r, 2 multiplied by 22/7 and radius is given 10. So ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 44 440/7, तो ये हो जाएगा आपका 42 2 14 6 56 4 35. So this is your circumference in the second when your radius is given 10. Now in the third circumstances, circumference of circle formula is 2 pi r, 2 multiplied by pi is equal to 22/7 and your r is given 12 centimeter. 12 again 7 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 44 को 12 44 528/7, राइट? तो ये हो जाएगा 35 3 28 2, so 75.42 approximately. ठीक है, so this is your question number 2 in all the circumstances when 7 10 and 12 is your radius. So this is question number 2. Now question number 3, let's see what has given. Calculate the length of the arc of a circle if the radius is 3.5 and the angle of the center is 60, and second case the radius is 6.3 and the angle of the center is 120. Chaliye, in the first case, so we know that formula length of arc is equal to
थीटा oblique 360 multiply by 2 pi r. This is the formula of length of arc. Now we have been given in the first case at the center we have 60 degree, so 360 multiply by 2, pi is 22.22 upon 7, and r is given here 3.5 centimeter, 3.5, right? So 6 ये हो गया आपका 0.5, 2 से ये कटेगा 2, 3, दिस इज इट 36, 6, 2 से ये 2 गया, 2 से ये हो गया आपका 3, 7 से ये हो गया, अब ये आ गया आपका 11 upon 3, दैट इज 9, 2, 6 ये आएगा आपका, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क 3.67, 0.5 11 हो जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं होगा, ठीक है। इन द सेकेंड केस लेंथ ऑफ आर्क formula same, theta upon 160 multiply by 2 pi r, put the value. Now it says at the center the theta is, that is angle is 120 degree by 360, 2 pi 22.7, and your radius is changed 6.3, so 3 बार गया 0.9, 0.3, सो ये हो गया 44, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 3 से ये गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका 63, राइट, और ये हो गया आपका 44, 44.4, 12, 2, 1, 13, और इसको हमें डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड हमें नहीं करना है किसी से, 3 से 9, 7 से 43, 44 से 3, सो हमारा आ गया 13.2, राइट। सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं उनको आप सिर्फ रख दीजिए फॉर्मूला में, अभी तो यही है आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, नॉट द सर्कल, इट इज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 14 एंड द सेक्टर एंगल इज 7। चलिए आपको पहले बता दूं, लेट्स से दिस इज द सर्कल, राइट, सो दिस इज सेंटर, और ये आपका सेक्टर होता है, ठीक है। दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर। अब ये दिस इट इज सेइंग यू हैव द रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर and the sector angle is 75 degree. Now you have to find the perimeter of the sector of a circle radius. Now you have to find out the perimeter of this and this, right? So perimeter of sector is equal to, क्या हो जाएगा आपका, 2 तो r हो जाएगी, 2r, 2 रेडियस प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें पता है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई r। सो नाउ पुट द वैल्यू 2r कितनी है हमारी 14, ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस थीटा हमारा कितना है 75 डिग्री डिवाइड बाय 360, 2 पाई 22/7 एंड r 14। नाउ सॉल्व इट, तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको करते हैं, ये आपका हो गया 2,
अब देखिए ये हो गया आपका 5, 15 से भी कट जाएगा, 75, 30, 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 12, फिर कट जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 11, फिर कट जाएगा ये आपका हो जाएगा 3, राइट। तो अब ये कितना हो गया आपका, ऊपर 75 कट गया, 5 रह गया, 2 कट गया, 22 कट गया, 14 कट गया, तो 5, 11, 55 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं बचा 3, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा आ गया 55/3। इसको एलसीएम ले लीजिए, 28 + 55, 3 मान लो 1 है तो ये हो जाएगा 24, 2 84 + 55, राइट। 5 और 4 9, 1 8 5 13 और 1 14/3। तो चलिए इसे सॉल्व करिए। अब आपका हो जाता है 12, 2 27, 2 18, 6 49.67, राइट। दिस वुड बी योर आंसर। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इसमें देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज 2r प्लस लेंथ, 2r 2 आपकी रेडियस है प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ये होता है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, ठीक है। अराउंड इतना ही आना चाहिए, जस्ट चेक इट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, that is a diagram based question and number of options are there, number of questions, right. So question number 5 and part 1. Now I am preparing the diagram first. So this is the diagram you have been given, ठीक है। इसमें 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। अब ये कितना है, ये आपका जो पूरा रेडियस ये दिया हुआ है 60 है, और ये जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 80 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 60 है। नाउ यू हैव 2 सेमी सर्कल, 1 रेक्टेंगल, राइट। सो आपका पेरीमीटर ऑफ शेप वट एवर द शेप इज इक्वल टू। अब इसमें मेरा शेप क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो लेंथ हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 2l प्लस 2 मेरे, ये देखो ये आपका सेमी सर्कल है, ये आपका डायमीटर है सेमी सर्कल, ये डायमीटर सेमी सर्कल, ठीक है। तो 2 मेरे सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, आपका सर्कल का जो पेरीमीटर होता है सर्कल का 2πr होता है। तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2πr, 2 से 2 कट गया तो πr। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका πr, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज। 2l कितना है हमारा, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 80, सो ये हो गया प्लस, नाउ 2π हमारा 22/7, और r कितनी है ये देखिए, ये जो है पूरा 60 है ब्रेड, तो आधा कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो r कितनी हो गई हमारी, रेडियस कितनी हो गई 30, राइट। तो ये हो गया आपका 160 प्लस, अब ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा आपका, तो आपका हो गया 44 0 और 2 1 13/7। जस्ट लेट मी चेक, 44 30 0 1 1320, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 7 तो 0 42 4 11 1120 4 यस 1320। अब इसको टोटल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 20 20 40, और 3 और 1 4 और 1 और 1 2/7। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2440 को 21 आपका बचा 21 3 28
6 56 35, तो 348.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है आपकी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, राइट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। Question 5 of part 2. So two semicircle has been given, right? And we have to find the perimeter of this, larger, the smaller, and this part, right? This part. So let's see perimeter of shape will be, so this smaller one. So I am taking r small here. छोटे वाले सेमी सर्कल का जो आपका पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर, प्लस बड़े वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर कैपिटल, राइट, प्लस ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। सो यहाँ पे हम देखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, इसका आर छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 8 डायमीटर है, तो ये 4 हो जाएगा आपका, प्लस दूसरे का पाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर, पूरा डायमीटर 12 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 6 + 4। नाउ सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने में लेट्स टेक 44 8/7 प्लस ये हो जाएगा 13 132/7 प्लस 4, लेट्स टेक द एलसीएम 7 88 प्लस 132 28 = ये आपका हो जाएगा 8 और 2 10 और 8 18, 1 3 और 3 6, 6 8 14, 4 1 और 1 2, 248 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये हो जाएगा 8 40। पहले मैं एक बार करके देख लूँ, 32 और 8 40, 160 और 80, तो बिल्कुल सही है। 21 3 35 3 लगभग इतना सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नंबर 3। शेप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। शेप आपको कुछ इस प्रकार से दी हुई है, एंड राइट। अब ये क्या है, यहां से देखिए, एंड दिस इज, और रादर यही है आपका, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 4 आपके सेमी सर्कल हैं। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप = 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपका 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई आर,
राइट। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 22.7 मल्टीप्लाई बाई आर। अगर ये इतना पूरा आपका डायमीटर है सेमी सर्कल, अगर ये वाला सेमी सर्कल ले लो आप, राइट, सो इसका डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 10 0 1 11 डिवाइडेड बाई 7, सो ये हो जाएगा 440/7, 42 2 14 6, लगभग इतना हो जाएगा आपका ये 62.8 सेंटीमीटर इन द थर्ड केस, राइट, 62.85। Now we'll move to 4. आपका 4 में दिया हुआ है कुछ शेप इस प्रकार से, एक ट्रायंगल के साथ साथ आपके सेमी सर्कल बने हुए हैं। ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स ट्राई वन सेमी सर्कल, the other semicircle and here the semicircle। 3 semicircle दिए हुए हैं आपको, राइट। और ये जो तीनों हैं मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो diameter for all these 3 circle is 12, so radius would be r। so हम क्या कर सकते हैं, एरिया, sorry this is not area we have to find out the perimeter in all the shapes। perimeter of shape is equal to 3 semicircle है पाई r, ठीक है। सो क्योंकि 3 है तो 3 पाई 22/7 एंड r क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट। तो r कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू d/2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो आई एम पुटिंग हियर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 132/7 और ये हो जाएगा 6 9 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 35 4 42 4 लगभग इतना 56.5 सेंटीमीटर लगभग, राइट। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Now we'll move to part 5th of question number 5। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, लेट्स ट्राई। ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा आपका, ये आपका एक क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये आपका एक क्वाड्रेंट। नाउ इट सेज फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ठीक है। और ये हमारे को, ठीक है, ये जो है 4 तो हमारे सेमी सर्कल हो गए और 4 हमारे जो है क्वार्टर ऑफ ए सर्कल हो गए, राइट। और हमारे को ये जो दिया हुआ है ये कितना है 10 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। दिस इज शेप, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारी 4 सेमी सर्कल हैं, 4 पाई r प्लस 4 हमारे क्वाड्रेंट हैं, 4
अब देखिए सेमी सर्कल का तो मैंने आपको बताया था, सर्कल का क्योंकि आपका सर्कल का आपका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, फिर सर्कल 1/4 हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, राइट। तो ये 2 से 2 गया तो पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई आर अपॉन में 2 इनके लिए 1 2 3 4, ये जो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है, और ये आपके सेमी सर्कल है, ठीक है। दिस वन सॉरी दिस वन एंड दिस वन, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 22, पहले वही कर लेते हैं हम, पाई को बाहर ले लेंगे, 4 पाई ऐसे रहने दीजिए, आर मेरा कितना हो जाएगा, इफ यू सी दिस इज बीइंग गिवन 14, राइट, दिस इज 14, ये 10 नहीं है 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 प्लस 4, ये आपका पाई को पाई लिख लेते हैं अभी, और रेडियस फॉर दिस क्वाड्रेंट। अब अगर आपको कोई क्वाड्रेंट है, राइट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऐसे होता है आपका, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, पूरी की पूरी जो आपकी 14 है ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो पूरा का पूरा आपको 14 लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। ये हमने ले लिया 14 का 14। अब देखिए ओब्लिक 2 है, 2 से इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, रादर इसको रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी आपका 4 है, तो मैं 4 पाई को बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा इसका, 4 पाई ये हो गया 7 प्लस ये क्या रह जाएगा 14 अपॉन में 2, राइट। इसको आप 7 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 422 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 से ये गया 2 बार, तो ये हो गया आपका 22 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 6 176 सेंटीमीटर। सो 176 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका 4, इसका 4, ठीक है। ये आपका सेमी सर्कल है और ये आपके क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए इनके पेरीमीटर को, तो आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ वी विल मूव टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपकी जो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दिया हुआ है, एक आपका सेमी सर्कल है, राइट, और रादर मैं इसको हटा देता हूँ, और ये जो है आपके 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इनको मिला लीजिए, देखिए अब आपको शेप समझ में आ जाएगी। ये तो देखिए बड़ा वाला जो है ये आपका सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है। और एक आपका सेमी सर्कल ये है, 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 ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारे को, वी हैव बीन गिवन 28। सो लार्जर जो बड़ा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 14, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 1 2 3 4। तो स्मॉल रेडियस कितनी हो जाएगी 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। तो हर सेमी सर्कल की रेडियस, ये तो आपका डायमीटर है, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका डायमीटर है तो ये आपका
रेडियस हो जाएगा 3.5। ठीक है, चलिए पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू सेमी सर्कल लार्ज वाला, तो पाई, मैं इसका आर बड़ा लिख रहा हूं, पाई आर प्लस 4 स्मॉल सेमी सर्कल, सो पाई छोटा वाला आर। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से पाई जो है कॉमन ले लेता हूं। पाई यहाँ पे रह गया आर, तो आर कितना आ जाएगा 28 का, कैपिटल वाला जो है 14 हो जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 28 है, तो आपका आर कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, जो अंदर है, और आर स्मॉल वाला आर कितना है 3.5 है हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई आपका है 22.7, अंदर है 14 प्लस 3.4 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 7 3.5 twice 7 14 12, हाँ 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाई 28, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये लीजिए इसका, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। नाउ वी विल मूव टू Part 7 of question number 5. 7, अब इसकी शेप कैसी दी हुई है, इसमें एक आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लीजिए रेक्टेंगल में एक सेमी सर्कल ये लगा हुआ, एक सेमी सर्कल ये लगा हुआ, और एक सेमी सर्कल ये लगा हुआ। ठीक है, 3 सेमी सर्कल है, पर इनकी रेडियस अलग अलग होगी। इसकी डायमीटर 6 दिया हुआ है, इसका डायमीटर 8 दिया हुआ है, इसका डायमीटर हमें पता ही नहीं है, तो फर्स्ट तो हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस इज ए बी सी, राइट। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, as per Bodhiana Pythagoras theorem, this is 90-degree angle, right। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दैट इज AB स्क्वायर प्लस हाइट BC स्क्वायर। सो पुट द वैल्यूज, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो दैट विल मेक 64 प्लस 36, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो AC इज इक्वल टू 10। ये हमारा आ गया डायमीटर 10। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप। क्या हो जाएगा, मैं इसको पहला दे देता हूँ, इसको दूसरा दे देता हूँ, इसको तीसरा नंबर दे देता हूँ। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1 क्या हो जाएगा, पाई आर कितना है हमारा मल्टीप्लाई बाई 5, 10 का आधा 5 हो जाएगा, डायमीटर 10 है, प्लस पाई पेरीमीटर ऑफ सेकंड, दिस इज मल्टीप्लाई बाई रेडियस, दैट इज 4, थर्ड वन पाई रेडियस इज 3, सो आई कैन टेक पाई आउट कॉमन, तो ये कितना रह गया 5 प्लस 4 प्लस 3, सो पाई मेरा हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, 24 2 26, ये हो गया 264/7, तो 21 5 7 5 7 37.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, so this is the perimeter of this shape from here to here, here to here, and here to here, right। चलिए, now we'll move to part number 8 of question number 5। Part 8 which is given is semicircle। अगेन एक सेमी सर्कल दिया हुआ है,
और इसमें आपके 3 अलग अलग सेमी सर्कल दिए हुए हैं, 3 सेमी सर्कल ये लीजिए, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से यहाँ तक दिखाइए। चलिए, ये आपका जो दिया हुआ है डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 4, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 4, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 4। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12। डायमीटर इज इक्वल टू 12। तो हमारी कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, यानी इस वाले बड़े वाले सेमी सर्कल की आर कितनी हो जाएगी, 12/2 इज इक्वल टू 6। और जो छोटे वाले हैं डायमीटर 4 है तो इनकी 2 हो जाएगी। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ लार्ज सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ 3 स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, 3 है ये। तो पेरीमीटर ऑफ लार्ज कितना हो जाएगा, पाई आर। आर मेरा कितना निकाला मैंने यहाँ पे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 3 सेमी सर्कल है तो 3 हो जाएगा, पाई पाई रहेगा, और आपका आर कितना हो जाएगा 2, राइट। सो मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई मैंने बाहर ले लिया, तो ये रहेगा 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा 22/7, 6 प्लस 3 तो 6, ये हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो गया 24, 2, 26, ये सेम आ गया, ये आपका हो गया 7, 21, 5 और 49, और ये हो गया 37.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आपका हो गया 7th, राइट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। This is 9th part of question number 5, right? And this has been given a semicircle. एक आपको सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 2 सेमी सर्कल दिए हुए हैं। कुछ इस प्रकार से, तो आप डायमीटर को मिला लीजिए ऐसे ऑफ लार्ज सेमी सर्कल, और ये कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सेमी सर्कल है उसका दिया हुआ है 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा लार्ज सेमी सर्कल का 20। सो डायमीटर इज इक्वल टू, मैं कैपिटल से लिख लेता हूँ यहाँ पे बड़े के लिए, डायमीटर इज इक्वल टू 20। सो आर इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10। बड़े वाले का 10 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ शेप is equal to perimeter of large semicircle plus perimeter of small semicircle multiply by 2, क्योंकि 2 हैं। सो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पाई आर मेरा कितना है, मल्टीप्लाई बाई 10 फर्स्ट सेकेंड, ट्वाइस 2 सेमी सर्कल हैं, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10, इसका भी 10, तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5, राइट। अब मैं पाई यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, पाई मैंने बाहर ले लिया, तो ये रह गया 10, और ये रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 22/7, और ये हो गया 10 प्लस 10, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो गया आपका 0, 4, 4, 7, तो ये हो जाएगा 42, 2, 14, लगभग 62.8 सेंटीमीटर, राइट। पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है। 2 छोटे और एक बड़ा सेमी सर्कल है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 गेट्स ओवर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ आपका,
क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए डायमीटर ऑफ ए कार इज 56 सेंटीमीटर, सो हम आर ढूंढ लेते हैं सबसे पहले 56/2 दैट इज 56 सेंटीमीटर, सो दिस इज 28 सेंटीमीटर, सो हमारा रेडियस कितना हो गया 28। नाउ क्वेश्चन पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज how far does the car needs to travel for the tire to complete one revolution? To complete one revolution, इसका मतलब समझते हैं आप, आपका एक टायर दिया हुआ है, राइट, एक टायर दिया हुआ है। अब अगर ये चलता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये टायर चलेगा, यानी एक टायर पूरा यूं घूम के जब चलेगा उसको वन रेवोल्यूशन कहते हैं, पूरा घूम जाएगा, ठीक है, उसको वन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हमारा टायर क्या है, आपका सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर निकाल दूं, अगर वो घूमेगा तो पूरा उसका जो पेरीमीटर कवर हो जाएगा, तो दैट इज 2πr, तो 2π 22/7 और r मुझे कितना दिया हुआ है 28, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया 14, ठीक है, तो ये हो गया आपका 44 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 5, ये हो गया आपका 5। Am I doing it right? Just a moment. If the diameter of a car is 56 centimeter, okay, the radius is 28. How far does the car needs to travel to complete one revolution? So 2πr 28. मैंने गलत कर दिया है, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये 4 है एक्चुअली, 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरे टायर को घूमने में 176 सेंटीमीटर लगते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 which says how many revolution does the tire make if the car travels 10 kilometers? So first what I am going to do is first change centimeter into meter, that is 176 divided by 100 is equal to 1.76 meter. It takes in one revolution. So total distance in meter is equal to 10 kilometer multiplied by 1000 meter, that is 10,000 meter. Now revolution required to cover total distance is equal to, now how many revolution it required, that is 10,000 multiplied by divided by 1.76 meter. So remove this point and make 2 zeros over here and solve it. Solve करिए और आपका जो आना चाहिए दैट इज, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 88, ये आपका 5,44,250,000 22 1,25,000 11 2 0 62,500, so divided by 11 55 7 66 9 0 88 2 0 11 9.8 88 फिर 2, तो ये आ जाएगा लगभग 1.8 revolutions are required to cover 10 kilometer. If the tire take one revolution and cover 1.76 meter, right? In the first part we have calculated in the centimeter, so that is 176 centimeter. Now we have converted into meter.
So this is it, question number 6. Now we'll move to question number 7. The next question is question number 7 part 1, and this kind of formation has been given. So if you can see that, अगर आप देखें तो ये आपका सेमी सर्कल है, 4 सेमी सर्कल दिए हुए हैं और ये आपकी जो साइड है 14 14 14 है। तो अगर आप ये देखें, ये जो आपका सेमी सर्कल है, अगर इसका पूरा डायग्राम जो है, अगर पूरा इसका जो पूरा डायमीटर है, अगर वो डायमीटर अगर मैं लिखूं तो वो आपका 14 होता है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। सो हम कैसे इसका निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ शेप जो दी हुई है हमें इज इक्वल टू 4, राइट। 4 हमारे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, right? So 4 I am putting here, 22 7 और आपकी R कितनी है, 7, so 7 7 4 multiply by 22, that is 88 सेंटीमीटर। So this is very easy। 4 आपको सेमी सर्कल दिए हुए हैं, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है and you are getting the answer 88 सेंटीमीटर। Now the next question is, we have been given petals and if you can see, this is hexagon which has been given। ये hexagon है जिसकी 6 sides होती हैं और उसमें petals दिए हैं। तो ये आपके सेमी सर्कल नहीं है, हमें आर्क गिनना पड़ेगा। तो आर्क हमारी 12 है, राइट। तो 12 आर्क यहाँ पे दी हुई है हमारे को। इन 12 आर्क का हमें जो है पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू 12 है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क दी हुई है। तो ये आपकी 12 है और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और यहाँ पे 12 और थीटा, एक हेक्सागन जो होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो सेंटर के साथ जो होता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 6 साइड 360 डिग्री राउंड में तो आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, हमारे को 42 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 आपका हो गया 7 42, 6 से 6 गया आपका, तो ये हो गया 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 22, 12 44 और ये 48 4 55 28 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज इट। आपके 12 पेटल्स हैं और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। 12 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ठीक है। जितने डिग्री का एंगल हेक्सागन में 60 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 528 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 में, this is different kind of question. It says the ratio of perimeter of two circle is 5/4. What is the ratio of radii? So perimeter of first circle क्या हो जाएगा, लेट्स से मैं लेता हूँ पाई आर, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, आर कैपिटल ले ली, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल, अभी हम सिर्फ जनरलाइज कर रहे हैं, 2 पाई स्मॉल आर। नाउ इट सेज द रेशियो अपॉन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो एज पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, रेशियो ऑफ 2 पेरीमीटर्स। सो इन दोनों का रेशियो 2 पाई आर, रेशियो कितना होता है 5/4। तो इनकी रेडियस में कितना रेशियो है, ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो आर कैपिटल अपॉन आर, तो आर इसका है बड़े वाले का, सो 5/4
or we can say r is equal to 5 into 4. So this would be the ratio among two of the radius of the circle. ठीक है, if the perimeter of first circle is 2 pi r, perimeter मान लिया हमने, ठीक है, perimeter of second circle is 2 pi r. जनरली फॉर्मूला यही होता है. नाउ एज पर क्वेश्चन ये कहता है इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 5/4 का है. तो हमने एज पर क्वेश्चन रख लिया, इसको ऊपर इसको नीचे और 5/4. तो जो सॉल्व हो गया तो हमारा रेडियस निकल के आ गया. रेडियस का जो आपका प्रपोर्शन है वो 5:4 रेशियो जो है 5:4 है. सो दिस इज योर 6.1. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक 6.2. टिल देन थैंक यू.